Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 26th August 2021. Let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So, student, in the previous video we have completed chapter number 7, types of houses. All the question answer we have completed in our classwork copy. So in today video I will start a new chapter, that is chapter number 8, and name of the chapter our clothes. So student, let us discuss what are the learning objectives of this chapter. The learning objective of this chapter is why we need a clothes, okay, and why we need a clothes, and what are the material used for making this clothes, and how we will take care of our clothes. So these are the learning objectives of this chapter. Why we need clothes, then what material is used for making clothes. Then how we keep our clothes, or we how to take care of clothes. So what does it mean? It means that after explanation of this chapter, one by one I will explain all the topics of the chapter, and after completing the chapter, the three things which you are able to understand, that is why we need a cloth. Second thing is that which material we are using for making this clothes, and next is how to take care of our clothes. Okay, so let us start from the past time. Okay, now in the beginning of the chapter, it is in the introduction of the chapter, it is given about the past time. Past time means the early human beings, they are also living in the forest like animals, and they move from one place to another in search of food and shelter. So, and at that time they don't wear clothes. After some time, after some time what they have done, so early human beings, they are living in a forest like animals, and they did not wear clothes. So what, how they covered their bodies? अब उस समय उनको क्लोथ्स बनाने की बेटा नॉलेज नहीं थी, ठीक है। जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो क्लोथ्स वेयर नहीं करते थे, ठीक है। अब क्लोथ्स वेयर नहीं करते थे, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कपड़ों के, बिना क्लोथ्स नहीं थे तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए दे आर यूजिंग डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। सो द अर्ली ह्यूमन बींग्स, दे आर लिविंग इन द फॉरेस्ट एंड दे डू नॉट वेयर ए क्लोथ्स नाउ. So in the past time, when they don't know how to make the clothes, then how they covered their bodies? So they covered their body with leaves, bark of the tree. जो पेड़ों की छाल होती है ना बेटा, बड़े पेड़ों की, बिग ट्रीज की, छोटे नहीं.
ठीक है। सो लीव्स, बड़े पेड़, बड़े बड़े पत्ते भी, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते बहुत बड़े होते हैं, तो दे कवर देयर बॉडी विद द लीव्स और बार्क ऑफ ए ट्री एंड स्किन ऑफ ए एनिमल्स, बिकॉज अर्ली ह्यूमन बींग्स क्या एनिमल्स को भी किल करते थे, एंड दे ईट द फ्लैश ऑफ दैट एनिमल्स। सो एनिमल की बॉडी की जो स्किन होती थी उससे भी वो अपनी बॉडी को क्या करते थे, कवर करते थे। Is it clear? So these are the things which the early man do in the past. Okay, so these are the things which the early man do in the past time. Okay, later they weave clothes using thread of cotton and silk. They also use wool from sheep to make warm clothes for winter. Now after many years they learn how to weave the cloth. Weave मतलब कैसे clothes को बनाना है, ठीक है। सो दे यूज नेचुरल मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। उन्होंने सराउंडिंग में जो चीजें थी उनसे, फॉर एग्जाम्पल देखो प्लांट्स, फ्रॉम द प्लांट्स वी, प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट, वी गेट, देर आर मेनी मेडिसिनल प्लांट्स आल्सो, ठीक है। सो वी गेट टिम्बर्स फ्रॉम द प्लांट्स, जो घर बनाने की लकड़ी है, और वी यूज वुड ऑफ द प्लांट एज ए फ्यूल आल्सो इन द पास्ट टाइम फॉर कुकिंग द फूड। सो इन द सेम मैनर सी देयर इज ए प्लांट दैट इज नोन एज द कॉटन प्लांट। ओके, सो फ्रॉम द कॉटन ऑफ दैट प्लांट वी स्टार्ट मेकिंग द थ्रेड, ठीक है। तो हमने क्या बनाना स्टार्ट किए, थ्रेड बनाने लगे, ठीक है। फिर इन थ्रेड्स को क्रिस क्रॉस करके हमने वेव कर क्या करना, क्लोथ बनाना सीखा। अगर आप कोई क्लोथ के कॉर्नर से एक थ्रेड निकालना स्टार्ट करोगे तो बेटा वो सिंगल सिंगल थ्रेड आउट होता है। तो ये एक टेक्निक होती है कि हम लोग थ्रेड्स को आपस में क्रिस क्रॉस करके, पहले तो ये सारे क्लोथ्स जो वेवर्स बनाते थे कपड़े बुनने वाले, ये हैंडमेड मशीन्स पे की ये काम किया करते थे, ठीक है। दे डू दिस वर्क ऑन द हैंडमेड मशीन्स। अभी फर्दर अभी चैप्टर में आएगा और डिटेल में बहुत आएगा कि अब तो देयर आर मेनी मैन मेड मशीन्स, बड़े बड़े लूम्स हैं जिसमें ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में, टेक्सटाइल्स में यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मतलब जहाँ पे कपड़े बनते हैं। प्रेजेंट टाइम में तो ये चीज़ें बहुत हैं, ठीक है। तो पास्ट टाइम में जब ह्यूमन बींग्स ने सबसे पहले कॉटन और सिल्क के क्लोथ बनाए थे, सबसे पहले कॉटन बनाया था, सिल्क की भी क्लोथ्स होते हैं, लेकिन सिल्क के क्लोथ सबसे पहले चाइना में बनना स्टार्ट हुए थे बेटा, ठीक है। सिल्क के क्लोथ्स एक सबसे पहले चाइना में बनना स्टार्ट हुए थे, ठीक है। सो दैट इज द रीजन बेटा कि अब देखो क्लोथ्स के लिए, देखो नेचुरल क्लोथ्स हैं ये, जो कि तुम्हारा कॉटन है और जो सिल्क है, ठीक है, इसे नेचुरल में बोला गया है। तो एंड कॉटन प्लांट से जो कॉटन लेते हैं उसका क्या बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, उससे थ्रेड बनाते हैं, और इन थ्रेड्स को आपस में क्रिस क्रॉस करके जोड़ जोड़ के क्या बनाया जाता है, क्लोथ बनाते हैं। तो इन दिस मैनर द ह्यूमन बींग्स लर्न हाउ टू मेक द क्लोथ्स, ओके। और आफ्टर दैट दे स्टार्ट टेकिंग आउट द वुल फ्रॉम शिप। शिप भेड़ों के बहुत बड़े बड़े, भेड़ें क्या हिलीज एरिया में ज़्यादा होती हैं, तो उनके जो बाल होते हैं, ठीक है, उसको ये स्किन से उनके रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो उससे भी कैसे क्लोथ बनते थे, वार्म क्लोथ्स, एंड दिस टाइप्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन द विंटर सीजन। आप देखते हो ना, अकॉर्डिंग टू द सीजन वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। क्लोथ्स भी हम लोग कैसे वियर करते हैं, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। वार्म क्लोथ्स अगर आप समर सीजन में पहन लोगे तो आप पहन ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो दैट इज द रीजन स्टूडेंट, they also use wool from sheep. Sheep is animal, or especially these are found in the mountain areas where the weather is very cold. That is the reason lot of hairs on the body of their skin, and they take out this, and इसको हम लोग क्या बोलते हैं, wool बोलते हैं, ठीक है। और इससे भी हम लोग क्या वार्म क्लोथ्स बनाने लगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, डू यू रिकॉग्नाइज दिस फेमस कैरेक्टर। सो I hope all the student can tell by seeing this picture which is shown in your book.
So who is this? This famous character is Mowgli. Okay, this famous character is a Mowgli. Okay, so this boy, he used to live in a jungle, and see what type of clothes he is wearing. So at that time, the clothes which the man is wearing, देखो ये past का दिखाया, देखो this is the skin of the animal. ठीक है, इस ह्यूमन बीइंग ने अपनी बॉडी को किससे कवर किया है? स्किन ऑफ द एनिमल्स. बिकॉज इन द ओल्ड टाइम even human beings kill the animals and eat the flesh of the animals. So and after that they use the skin of the animals as to cover their body before when they are unable to make a clothes. Okay, now next question important arises, why do we wear clothes? Next important topic is, why do we wear so topic is why do we wear clothes. ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था why we need a house. So house save us from the extreme weather condition या harsh weather condition. Okay, from the thieves also, from the wild animals also. And is it clear? And even you can kept your belongings or the things you have buy, and that things are safe inside your house. So that is the reason we need a house. Now this is chapter, and the topic and the name of the chapter is our clothes. Now the question arises, why do we wear clothes? So clothes cover our body and protect us from heat, dust, insect bite, rain and cold. ठीक है, so you can, why do we wear clothes? Clothes protect us, clothes protect us from heat, dust, insect bite, rain and cold. So these things we will discuss in detail when I explain you about which types of clothes we wear in different seasons. हम डिफरेंट सीजन में कैसे क्लोथ वेयर करते हैं, तो वहाँ मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा. ठीक है, फर्स्टली देखो, अब ये समझ लो वाई डू वी वियर क्लोथ. तो क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट. ठीक है, डस्ट है, देखो सराउंडिंग्स में, हमारे सराउंडिंग्स में जब एयर चलती है तो बहुत सी धूल भी उड़ती है, तो हमारे सराउंडिंग्स में एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं. ठीक है, जैसे बहुत तेज हवा चल रही है, ठीक है, आप ग्राउंड से जा रहे हो और एकाएक तूफान आ गया, थोड़ी हवा ज़्यादा तेज हो गई, तो आप घर में आके ऑब्जर्व करोगे, आप अपने फेस को देखोगे तो आपको लगेगा पूरा आपके फेस पे पूरी डस्ट आ गई, आपके क्लोथ्स में डस्ट पूरी लगी है. स्पेशली वाइट क्लोथ्स, ब्लैक डार्क कलर में ज़्यादा ये विजिबल होता है. ठीक है, ब्लैक कलर के, अगर ब्लैक कलर है या डार्क कलर के क्लोथ्स में डस्ट ज़्यादा विजिबल होती है. ये चीज़ें आपने ऑब्जर्व की होंगी. तो हमारी सराउंडिंग में डस्ट पार्टिकल्स भी हैं एयर में प्रेजेंट. और इंसेक्ट बाइट्स मीन्स स्पेशली मॉस्किटोज. ठीक है, अगर आपने फुल शर्ट पहन रखी है तब तो ठीक है, अगर जब आप हाफ शर्ट पहनते हो, या आपका समर यूनिफॉर्म क्या होता है, बॉयज़ के लिए पैंट होता है और हाफ शर्ट पहनते हो. ठीक है, तो जो पार्ट हमारा बॉडी का क्लोथ से कवर्ड रहता है, सो
वहाँ पे जो पार्ट हमारा बॉडी का अनकवर्ड रह जाता है ना, उस पे ही इंसेक्ट्स काटते हैं। ठीक है, तो जो क्लोथ्स है हमें इंसेक्ट्स बाइट से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड फ्रॉम रेन एंड कोल्ड आल्सो। रेन में आप सोचोगे रेन में तो कपड़े भीग जाते हैं, तो रेन में आप रेन कोट पहन सकते हो ना बेटा। ठीक है, वो वाटर प्रूफ होता है। वो क्या होता है, वाटर प्रूफ होता है। इससे अगर आपने अंदर क्लोथ्स पहने हैं तो वो वेट नहीं होंगे, वो गीले नहीं होंगे। ठीक है, और कोल्ड में भी क्लोथ्स प्रोटेक्ट करते हैं, बिकॉज इन द कोल्ड टाइम्स वी वियर वुलन क्लोथ्स। तो सो इन डिफरेंट सीजन्स दीज कोल्ड प्रोटेक्ट अस। ओके, इन डिफरेंट सीजन लाइक समर सीजन, मॉनसून सीजन जो कि आप रेनी सीजन भी बोल सकते हो, या तो फिर आप लोग कोल्ड सीजन है विंटर जिसे बोलते हो। तो सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट वाई वी वियर द क्लोथ्स, बिकॉज दीज क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस इन डिफरेंट सीजन्स। क्योंकि जब समर होगा तो हीट होगी, डस्ट पार्टिकल सबसे ज़्यादा समर में ही आपको, क्योंकि समर में बहुत हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो समर में डस्ट पार्टिकल्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। इंसेक्ट्स बाइट्स है, रेन एंड कोल्ड है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन वी वियर एंड दीज आर द रीजन। और इट इज गिवन क्लोथ मस्ट बी कंफर्टेबल। हमें बहुत टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। आजकल तो फैशन है, बच्चे बहुत टाइट ड्रेसेस क्लोथ्स पहनते हैं, लेकिन बेटा टाइट क्लोथ्स पहनने का एक साइड इफेक्ट ये है ना कि हमारे जो टाइट क्लोथ्स हमारी बॉडी से इतने ज़्यादा चिपके होते हैं कि जिससे हमारी बॉडी का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, हमारी बॉडी का प्रॉपर जो ब्लड सर्कुलेशन जो फ्लो होता है वो भी नहीं हो पाता अगर हम बहुत टाइट कपड़े पहने। ठीक है, तो हमें कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने चाहिए। और अदर क्या है क्लोथ्स की, व्हाट इज द अदर थिंग अबाउट द क्लोथ्स। क्लोथ्स में क्या आप स्मार्ट दिखते हो, स्टाइलिश दिखते हो। ठीक है, ब्यूटीफुल नजर आते हो। ठीक है, आप क्लोथ्स में आप क्लोथ्स पहनते हो तो आप मिरर में अपने को देखते होगे, क्लोथ्स वेयर करने के बाद आप स्मार्ट लगते हो, स्टाइलिश लगते हो, ब्यूटीफुल आपकी लुक आ जाती है। तो ऑल दीज थिंग्स आर आल्सो पॉसिबल ड्यू टू द क्लोथ्स। और क्लोथ्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि सम टाइम द क्लोथ्स ये भी बता देते हैं कि कोई पर्सन किस प्रोफेशन में है। जैसे आप सबके पापा लोग आर्मी में वर्क करते हैं, तो आर्मी वालों का एक ड्रेस होता है, ड्रेस कोड होता है। सारे उस ड्रेस को देख के दूसरे पीपल इजिली समझ जाते हैं कि दैट पर्सन बिलोंग टू विच प्रोफेशंस। ओके, इसी तरह जो पुलिस वाले हैं उनका भी एक ड्रेस कोड है। इफ यू सी एनी पर्सन इन दैट ड्रेस कोड देन यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन इज इन विच प्रोफेशन। नेवी का अपना ड्रेस है, एयरफोर्स में जो वर्क करते हैं उनका ड्रेस है। टीच इज इट क्लियर। सो अब देखो जैसे टीचर्स हैं, टीचर्स मोस्टली अब जो मेन ओकेजन्स होते हैं तो टीचर्स भी एक ड्रेस कोड ही वियर करते हैं। तो ड्रेस की एक और क्वालिटी है, मीन्स की ड्रेस से हमें ये भी पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द जॉब द पर्सन इज डूइंग। ठीक है, ड्रेस से हमें ये भी पता चल जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ द जॉब द पर्सन इज डूइंग। जैसे आप ही लोग का ड्रेस है, तो आप लोग के ड्रेस से भी पता चल जाता है कि आप स्कूल के स्टूडेंट हो। और मैक्सिमम स्कूलों के अपने थोड़े ड्रेस के कलर डिफर्स हैं। हम ड्रेस देख के बता सकते हैं कि दिस स्टूडेंट बिलोंग टू विच स्कूल, केवी, दिस स्टूडेंट बिलोंग्स टू विच स्कूल, एपीएस, आर्मी पब्लिक स्कूल 39 जीटीसी। तो दी क्योंकि अलग अलग ड्रेस के बच्चे होते हैं तो हम उन लोग के ड्रेस के कलर को रिकॉग्नाइज करके ये भी पता लगा सकते हैं कि ये बच्चा किस स्कूल में पढ़ता होगा। ठीक है, सो दैट इज द ड्रेस। इस से ये भी हो जाता है क्लोथ्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अब हम स्टार्ट करेंगे, जो कि मैंने अभी आप लोग से बोला था कि हीट डस्ट इंसेक्ट्स रेन है, ये तो अभी बता दिया। लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे क्लोथ्स एंड वेदर, then we will discuss all the points in detail. Now we will discuss these points in detail. Now the topic
which I explained you, that is the next topic, clothes, and the next topic is clothes and weather. So we wear different clothes according to the weather. ठीक है, according to weather we wear different types of a clothes. Okay, first is, okay, first is the summer season. Okay, so when we are, let's start with the summer season. Summer season. So first of all, student, I give you small explanation why we say it is a summer season, because this time the weather is very hot. इज इट क्लियर? सबसे पहले तो ये समझ लो, समर सीजन बोल रहे हैं तो इसका मतलब वेदर कैसा है, बहुत ज्यादा हॉट वेदर है. ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर होता है इस समय, स्पेशली नॉर्दर्न प्लेन्स एरियाज में तो लू चलती है, जो वार्म एयर चलती है ना आफ्टरनून के समय, उसको लू बोलते हैं. एंड फॉर एट दिस टाइम पीपल्स मोस्टली रिमेन इनसाइड देयर हाउसेस. ठीक है, इस समय मैक्सिमम पीपल अपने घर के अंदर ही रहते हैं. ठीक है, इफ देयर इज अगर उन्हें बाहर जाना होता है तो भी वो अपनी फेस को, हैंड्स को पूरा कवर करके बाहर निकलते हैं. ठीक है, तो दैट इज द रीजन. और समर सीजन मीन्स द सीजन इट इज वेरी हॉट. और जब बहुत हॉट होता है तो हमारी बॉडी से लॉट ऑफ क्या निकलता है, पसीना, जिसको इंग्लिश में स्वेट बोलते हैं. ठीक है, सो वी स्वेट ए लॉट. और हॉट वेदर होगा तो वी स्वेट ए लॉट, इट मीन्स बहुत ज़्यादा बॉडी से पसीना. क्योंकि जो वाटर मैंने आप लोग को बताया था, वाटर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो हमें बहुत स्वेट होता है. इससे हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रेगुलेट रहता है. ठीक है, बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है. ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो हीट है, जो इतना हॉट टेम्परेचर की वजह से वो स्वेट की इन द फॉर्म ऑफ ए स्वेट वाटर हमारी बॉडी से क्या होता है, लूज होता रहता है. ठीक है, तो दैट इज द रीजन. अब स्पेशली अब देखो विच टाइप ऑफ ए क्लोथ्स वी वेयर इन द समर. समर सीजन में हम लोग लाइट कलर क्लोथ ज़्यादा वेयर करते हैं. ठीक है, एट द टाइम ऑफ ए समर स्पेशली वी वेयर लाइट कलर ऑफ ए क्लोथ. सो व्हाट इज द रीजन वी वेयर लाइट कलर क्लोथ इन द समर? क्योंकि बेटा लाइट कलर क्लोथ जो होते हैं ये हीट को बहुत लेस ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, डार्क कलर क्लोथ्स क्या होते हैं, ये हीट को बहुत ऑब्जर्व करते हैं. और अगर आप लोग ने बाई चांस हॉट वेदर में डार्क कलर क्लोथ्स पहने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी. ठीक है, क्योंकि लाइट कलर क्लोथ्स जो होते हैं हीट को ऑब्जर्व नहीं करते. ठीक है, रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इनमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है. स्पेशली इन आ समर सीजन वी वेयर लाइट कलर क्लोथ्स. देखो स्पेशली बच्चों का यूनिफॉर्म जो होता है, देखो बिल्कुल लाइट कलर का होता है, क्योंकि ये नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया है, ये हॉट वेदर वाले एरिया हैं, यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होती है. तो देखो आप लोग की शर्ट का कलर क्या है, वाइट है. ठीक है, डार्क कलर की आपकी शर्ट नहीं है. तो जो जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं ये हीट को लेस ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हमें गर्मी कम लगती है. ठीक है, और जो डार्क क्लोथ्स होते हैं ये हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी फील होगी. सो जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं ये जब लेस हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या रखते हैं, ये कूल रखते हैं. इससे हमारी बॉडी क्या रहती है, कूल रहती है. ठीक है, सो और स्पेशली कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स की अनदर, स्पेशली अगर आप समर में कॉटन क्लोथ्स वेयर करते हो, सो what is the quality of a cotton cloth? It absorb sweat. ठीक है, स्पेशली हमें
जो समर में ना कॉटन क्लोथ ज़्यादा पहनने चाहिए, ठीक है। जो आपका स्वेट होता है, इतना पसीना होता है, देखो जो दूसरे आप लोग कपड़े पहनते हो नायलॉन जे वाले, वो आप कभी ध्यान दो वो पूरे भीग जाते हैं, लेकिन कॉटन क्लोथ्स क्या है, बहुत गर्मी होगी तो वो भी वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो बहुत स्वेट जो आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है उसको क्या कर लेते हैं, वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। तो एंड स्पेशली विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी शुड वेयर इन द समर सीजन, दैट इज द लूज फिटिंग क्लोथ्स। स्पेशली आपको कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए समर सीजन में, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स यू विल वेयर, दैट इज द लूज फिटिंग, लूज फिटिंग, लूज फिटिंग क्लोथ्स। एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दैट, लूज फिटिंग क्लोथ्स होंगे तो आपके बॉडी में इजिली एयर इंटर करेगी, ठीक है, जिससे कि आपकी बॉडी क्या कूल रहेगी, ठीक है। लूज फिटिंग के एक तो लाइट कलर क्लोथ्स पहनने हैं, ऊपर से आप अगर समर सीजन में बहुत टाइट कपड़े पहनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। हमें लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहनने चाहिए सो दैट द एयर इंटर इनसाइड, ओके, सो दैट यू फील कंफर्टेबल, ओके। अगर आपने लूज फिटिंग के क्लोथ्स पहने हैं स्टूडेंट, देन यू विल फील कंफर्टेबल इन सच क्लोथ्स, ठीक है। इस क्लोथ्स में हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है, हमें उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। सो दिस इज ऑल अबाउट द समर सीजन। नेक्स्ट सीजन इज द विंटर। Next is the so especially in winter season we wear woolen clothes, ठीक है। So it means what type of clothes we wear in summer or in winter, that is the thick clothes। थोड़े वो clothes जो समर सीजन वाले जो होते हैं वो उतने थिक नहीं होते हैं क्लोथ्स, क्योंकि वो क्लोथ्स बहुत थिक होंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। विंटर में आप लोग देखते हो कि विंटर में वुलन शर्ट्स भी आती हैं, ठीक है, जो कि थिक होती हैं, जिसमें एयर जल्दी पास नहीं होगी, इसलिए आपकी बॉडी क्या रहेगी, वार्म रहेगी, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्वेटर जैकेट्स क्यों वेयर करते हैं, कि एयर पास ना हो हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हमारी बॉडी अंदर से क्या रहेगी, वार्म रहेगी। और समर में इसका अपोजिट होता है, हमें लूज फिटिंग के क्लोथ्स चाहिए जिससे कि एयर बॉडी को टच कर सके, जिससे कि बॉडी क्या रहेगी, कूल रहेगी। और विंटर में इसका ऑपोजिट होता है, हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे कि एयर हमारी बॉडी को टच ना कर सके, और जब कूल एयर हमारी बॉडी को नहीं टच करेगी बेटा, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, वार्म रहेगी। इज इट क्लियर? So we wear thick clothes, okay, so what type clothes you wear in winter, we wear thick clothes, we wear thick clothes in winter, okay। And now the question arises, these clothes are made up of which type of things, so that is the wool, and this wool you get from the sheep, and sheep is an animal, so you get the wool from the sheep, okay। Then fur, this also you get from the animals, and leather, so this thing you also get from the animal, ठीक है। And next is the flannel, फ्लेनल, फ्लेनल की शर्ट्स आती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। फ्लेनल की शर्ट्स आती हैं जो वार्म शर्ट्स होती हैं, जिनको हम लोग विंटर में वेयर करते हैं, ठीक है। इन्हें वार्म इसलिए बोला गया है कि ये थिक होती हैं, और फ्लेनल के कपड़ों से आप देखोगे ब्लैंकेट्स भी बनते हैं या बेडशीट्स भी हैं, ठीक है, शर्ट्स भी अवेलेबल हैं। सो
ये वुलन टाइप के होते हैं, ठीक है, जिससे कि इसमें एयर इजिली इंटर ना कर सके, और जब एयर इजिली इंटर नहीं करेगी तो इट कीप योर बॉडी वार्म. Okay student, we will continue this topic in the next video. Thank you.